Just a minute. I have to wait for 3 minutes. Actually, little early now. Basically, our target will be to complete central tendency what we understand. Basically, central tendency what we understand is our today's um, topic. Now, if you go to the discussion, the main idea, then you will find that central tendency is actually a measurement of the center of statistical data. Center. What is the center? How do you get the center? Main idea of center is average. The word average is the center. Now, the word average can be three types. Why? Because when we find average, we find three types of average. Last class I told you there are three types of average. First type is the common type of average. Common type means where we use our main concept of finding the total value will be divided. Total value will be divided. How will divide? Equally divide. That means we are always want to find out the simple average. Now, arithmetic mean. I told you average word. I am discussing central tendency. The main idea is average. I always request all my students whenever I teach that statistics should be your strength. We should not ignore any topic of statistics. We should be very careful in learning the ideas of statistics. So there are three types of average. Arithmetic mean. Arithmetic means AM. Then what is the formula? X bar we denote as mean of X, and that is X by N total, but without frequency. But if it is with frequency, that is why I am writing OR, summation Fx by summation F, total frequency into X. I'll show some example. Then geometric mean is the product, all the numbers multiplied to the power 1 by n. Now someone asked me, what about frequency? We don't use frequency in geometric mean because of two reasons. It will be a very long calculation in frequency, and that requires a lot of difficulty in 1 by n. So we don't use geometric mean with frequencies normally. And harmonic mean is n by reciprocal of the values. N by reciprocal, all the values whose reciprocals we calculate and take the figure. So we have three formulas. X bar is summation X by n is mean, product of the numbers to the power 1 by n, and harmonic mean is n by summation 1 by x. Now, like if I say find HM, GM, AM, that means all the three of 2, 4, and 8. Very simple example. I am giving once more. Last class I gave in this one. Then what we do, AM will be just total 2 plus 4 plus 8. Total means summation X divided by number of data N, that is 14 by 3, which is 4.67 or 4.7 rather we can take. Next is geometric mean, the product 2 into 4 into 8 to the power 1 by n means 3 values. We have 3 values, so we'll divide by the power as 1/3. So 64 to the power 1/3 is 4.
And the last is harmonic mean, that is the number 3 values, 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. How to find out? Then we calculate the LCM, that is 8. Here it will be 8 is the LCM. Then it will be 3 by 4 plus 2 plus 1 by 8. 2, it is 2. So it will be 24 by 7, that is 3 point something. What we found, that AM greater than GM greater than HM. Always AM is the biggest, then HM, then GM. Then GM, then HM. Then one point you must remember, that AM greater than GM greater than HM. That means the relation between the three for any number of data, all values are different, then AM greater than GM greater than HM. Now for two values, what happens? For two values, I tell you one thing, quickest way to find out HM is for two values, 2 into the product of the two numbers. That is, two values are AB, suppose. Two values are AB, then you take 2AB by A plus B. This is the easiest way to find out HM for two values. Geometric mean for two values will be take the square root, because two values. And arithmetic mean is obviously A plus B, two values total by 2. Now here we have a very important rule for two values, only for two values. Don't have this relation for three values. For two values, अगर दो value है तो AM into HM, AM into HM is equal to GM square. So many cases we get this question, that what is the HM, what is the AM. Like if I say the last question of the last day, if you look at the question number 12, it is said GM is equal to 15 and HM is equals to 9. Last day's 12 number, what is AM? So AM is equal to GM square by HM, because AM into HM is GM square, that is 225 by 9. 225 is GM square by 9 is your answer, that is 25. So arithmetic mean is 25. Therefore, we got the answer. Now, today what I want, actually statistics when I discuss, I want that you should be very careful in looking at all the concepts. Concepts means, yes, there are a lot of concepts, lot of ideas, like the reverse question. Reverse question mane, जैसे AM and GM, very common question. This is AM and GM. If AM and GM of two values, I don't know the values, are 6.5, 6. Find the values. We don't know which are the values, but we know the AM is what and GM is what. AM is 6.5 and GM is 6. Find the two values. Now option 9, 6, 7. The results means the options. Then 8, 5. Then last day's problem, the last question. This is differently creating. I am creating the last day's question differently. मैंने ये अलग questions दे रहा है कि AM और GM दो वैल्यू का 6.5 है और GM है 6, माने AM है 6.5, GM है 6. अब वो दो वैल्यू जो वैल्यू हम लोग को निकालना है कि उल्टा है, कि क्वेश्चन हम लोग को निकालना है वो AM और GM दे दिए. तो 9 and 4 and the last is 3 and 12. Now how to find? First thing, see which two values, if you take the AM, option A का AM क्या है? 6 plus 7 by 2, so 13 by 2, 6.5. Yes, we have the AM as 6.5, but what is the GM? Root over 6 into 7, that is root 42. No, it is not your answer because it should be 6. So the technique is to check the option. You have to find which option the correct option to get the question. Reverse idea. तो ये बहुत ही पुराना आइडिया है कि ऑप्शंस देखो. बी ऑप्शन में 8 plus 5 by 2 is 6.5 AM. Yes,
true, but GM again root 8 into 5, not 6. Now C option. C option is 9 plus 4 by 2, yes 6.5, and 9 into 4 का रूट 6 है, yes. तो क्या किए? चोरी. चोरी मतलब ऑप्शन से चोरी. चोरी माने हम इसको ऐसे बोलते कि ये चोरी किए. कैसे चोरी किए? कि ये क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कि क्वेश्चन में एम और जीएम दे दिए तो कौन सा वैल्यू से वो निकला था. तो ऑप्शन को देख के बैकवर्ड कैलकुलेशन, यू विल बी टेलिंग इट विल टेक लॉन्ग टाइम. नो, नॉट दैट प्रॉब्लम, बिकॉज इन द एग्जाम और प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस यू विल नॉट राइट. क्यों लिखोगे? ये तो कैलकुलेटर में ही देख लेंगे. लिखने का तो जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू राइट, जस्ट सी द ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन से जियोमेट्रिक मीन 6 होगा, अरिथमेटिक मीन 6.5 होगा. तो ऑप्शन सी, sorry, C is the option. Very important type of questions. Next, which average we should apply? 3 एवरेज है, एम जीएम एचएम का 3 एवरेज है. कौन सा एवरेज कब करेंगे? फर्स्ट, जियोमेट्रिक मीन माने एवरेज. किसका एवरेज में यूज करोगे? याद रखो, एवरेज ऑफ परसेंटेज डेटा. whenever the data means the values are in percentage, to average of percentage you use GM. Example is index number. We have a chapter which is the last chapter of our syllabus in statistics, that is index number. So which average is the best average for index number? Geometric mean. Very important question. They don't ask always practical questions in statistics, not only stats, in mathematics also they ask conceptual. Which average should be used for index number? Your answer will be geometric mean, average percentage king. Second, harmonic mean, average of rate per unit. Average of rate per unit. Per unit rate means, what is per unit rate? That is speed. Speed. कोई भी speed का average. Any question where you need to find out the average of speed, we have to find out which HM. Otherwise, the remaining possible cases we use AM. माने कभी भी एवरेज करना है किसी का भी, कोई भी क्वेश्चन का एवरेज, तो एरिथमेटिक मीन यूज करो, एक्सेप्ट 2 केसेस, एवरेज ऑफ परसेंटेज, एवरेज ऑफ rate per unit. Please remember these 2 very important aspect. तो क्वेश्चन क्या आएगा? Question can be asked that in the case of population, average of population increase, which is the best, AM, GM, HM? Now when we calculate the population increase, obviously percentage, because population increases in percentage, therefore the result will be geometric mean. तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, फाइंड द एवरेज ऑफ, दे डोंट से द मेथड, फाइंड द एवरेज ऑफ 2% and 8%. सो दीज आर इन परसेंटेज. सो 2% और 8% का एवरेज क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 5% होगा. 2 + 8/2? नो, 2% 8% का परसेंटेज, तो 2 into 8 अंडर रूट, दैट इज 16% का रूट 4%. Don't say it will be 2 + 8/2 because it is a percentage data. It will be applicable in index number also. So this is a very important idea. Geometric mean apply होगा percentage में. 4% is average of 2% and 8%. Next, find the second type. Find average speed of a car. Average speed of a car. If it travels, if it travels 5 kilometer, 50 kilometer per hour during from from A to B. From A to B, if it travels 50 kilometer per hour and
60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बी टू ए, मैंने दो जर्नी है कार का, ए से बी गए 50 किलोमीटर पर आवर में और बी से ए आए 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए कार का? जाने के लिए 50 किलोमीटर का स्पीड, आने के लिए 60 किलोमीटर स्पीड था, तो एवरेज स्पीड तुम बोलोगे सर 55 होगा, क्योंकि जस्ट 50 और 60 का जोड़ के 2 से डिवाइड करो। नो, इट इज नॉट दैट, इट विल बी यूज HM। तो HM कैसे करते हो? वेरी इजी आइडिया, 2 इंटू 50 इंटू 60, मैंने दोनों को इंटू किए बाई 50 प्लस 60, दैट मीन्स 6000 by 11 110। so it will be your 5, माने 5 होगा तो 55 50 तो 4 फिर वही 5 के आसपास, मैं 54.5 के आसपास। so once more you look at the question, which type of average we are finding? AM, GM, HM तीन टाइप का क्वेश्चन में है। तो what we do we do जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन के अंदर कौन सा मीन यूज करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ए स्पीड, रेट पर यूनिट, क्यों? किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड के लिए एवरेज यूज करेंगे तो हार्मोनिक मीन 2 इंटू, आई टोल्ड यू दैट टेक्निक, 2 इंटू योर माने 2 इंटू 50 इंटू 60, दैट इज डिवाइडेड बाई इन टोटल, तो वो 54.55 एक्सेट्रा, माने 54.5 एक्सेट्रा, ऑप्शन देखते होंगे। So this is average with harmonic mean. Therefore, choice of which average we have to be very careful. Now, next, geometric mean, harmonic mean, arithmetic mean के अंदर arithmetic mean सबसे important है, and this is the best average in our calculation. But how we combine the average? How we combine means, देखो, combined arithmetic mean, combined arithmetic mean क्या है? दो ग्रुप है मेल फीमेल का, मेल फीमेल का दो ग्रुप है। तो मेल के लिए नंबर ऑफ मेल्स है, हाउ मेनी नंबर? N1 बोल रहे, मान लो 60 मेल है और उसका मीन माने एवरेज है x1 बार, ऐसे लिख रहे हैं। x1 माने मीन ऑफ मेल, x1 मीन ऑफ मेल बार लिख रहा है मीन के लिए, एंड दैट इज सपोज 10। एंड फीमेल के लिए नंबर ऑफ फीमेल है N2 is your 40 and mean of female, that is x2 bar, is 15. Now our question is combined mean of female. Find combined arithmetic mean. What is combined arithmetic mean? If you want to combine male female group as a single group, then what will be the combined arithmetic mean of the two groups? How to find? There is a formula. Look at the formula. N1 x1 bar plus N2 x2 bar by N1 plus N2. Once more, formula को गौर से देखो। दो ग्रुप है, एक ग्रुप में N1 डेटा है, एक ग्रुप में N2 डेटा है। अब दोनों ग्रुप को कंबाइन करके एक ग्रुप बना दो, मतलब यहाँ पर टोटल है 100 क्यों? मेल 60 जन, फीमेल 40 जन, तो जब जोड़ेंगे तो 100 जन 100 हो गया। तो दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? N1 x1 बार। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा। कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, मेल के लिए, मेल फीमेल ही ऑलवेज रहेगा, जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। दो ग्रुप है, एक सर्विस होल्डर एक नॉन सर्विस होल्डर, ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम लोग दो ग्रुप का कंबाइन कर रहे हैं। क्या दो ग्रुप ही होगा? जरूरी नहीं है कि दो ग्रुप होगा। N1 x1 बार, दो ग्रुप है इसलिए N1 N2 है। तीन ग्रुप होगा तो N1 N2 N3 आएगा। अब 40 सेकेंड ग्रुप का 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, ये क्या है? N1 x1 बार
प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो वो ऊपर में है 600 प्लस 600, क्योंकि ये भी 600 है ये भी 600 है, और नीचे है 100। तो आंसर हो गया दोनों का टोटल करके ये हम लोग 1200 और ये डिवाइड किए तो 1 2 12। तो ये 12 का मतलब क्या है, ये जो 12 है 12 है, ये मेल का एवरेज है 10, फीमेल का एवरेज है 15। मेल फीमेल को जब कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिए, एक सिंगल ग्रुप, तो उस ग्रुप का एवरेज होगा कंबाइंड एवरेज 12। So remember this question, 12 is the combined average of male and female. This is called combined average or combined arithmetic mean. Geometric mean के लिए combined हो सकता है, but that is not given in the course. It is a very long calculation, we don't have. कोर्स में वो नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के बदले हार्मोनिक मीन का हो सकता है। हार्मोनिक मीन माने दो ग्रुप का हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, कंबाइन करने से क्या होगा। व्हाट इज द कंबाइंड हार्मोनिक मीन फॉर्मूला। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, दो ग्रुप है, तीन ग्रुप भी हो सकता है, तो क्या होगा n1 n2 का टोटल ऊपर रखो, कंबाइन करके हार्मोनिक मीन को लिख रहे हैं, और नीचे n1 by h1, h1 is the harmonic mean for the first group, n2 by h2. So two formulas I have given. This is combined harmonic mean. And what is combined arithmetic mean? अभी लिखाए थे n1 x1 बार n2 x2 बार ऊपर में। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, combined harmonic mean, find combined, ऐसे क्वेश्चन आएगा, find combined harmonic mean if 15 data has HM 75 and 13 डेटा, मैंने दो ग्रुप है, एक ग्रुप में 15 डेटा है, उसका हार्मोनिक मीन 75, दूसरे ग्रुप में 13 डेटा है, 13 डेटा का कंबाइंड हार्मोनिक मीन 65। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन दो ग्रुप का क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, व्हाट इज द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। अगर 15 डेटा का हार्मोनिक मीन 75 है, तो n1 माने 15, उसका हार्मोनिक मीन है 75। सेकेंड ग्रुप का n2 13, हार्मोनिक मीन इज 65। नाउ कंबाइन करो दो ग्रुप को, तो टोटल जितना आएगा, कितना आएगा टोटल, 28 वैल्यू आएगा, क्योंकि 15 वैल्यू के साथ 13 वैल्यूज ऊपर में जोड़ेंगे, 15 प्लस 13। फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n2, 15 प्लस 13, डिवाइड करेंगे 15 बाई 75 प्लस 13 बाई 65। सो योर आंसर विल बी 28 ऊपर में जाएगा, नीचे 0.2 प्लस 0.2, तो 28 को 0.4 से डिवाइड करो, तो 28 बाई 0.4 माने 70 इज द आंसर। So it is a very important type of, not important, it is a good question to ask how to combine harmonic mean of two groups. So this is the idea of harmonic mean combined, and arithmetic mean combined ज़्यादा important, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर arithmetic mean यूज करते, हार्मोनिक मीन का यूज कम होता है, बहुत कम है, खाली स्पीड या रेट के लिए यूज होता है, अदरवाइज हार्मोनिक मीन यूज नहीं करते। ज्योमेट्रिक मीन भी बहुत कम करते, परसेंटेज यूज डेटा में यूज करते हैं। तो जनरल एवरेज इज arithmetic mean. So we have seen three types of average, AM, GM, HM, and the simplest decision will be to use arithmetic mean. This is the best average. Now अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो मीन कैसे निकलेगा, माने फाइंड arithmetic mean, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के लिए फ्रीक्वेंसी वेटेड, इसको बोलते हैं वेटेड, वेट माने फ्रीक्वेंसी, वैल्यू दे दिए x, वैल्यू दे दिए f, माने फ्रीक्वेंसी दे दिए 10, फिर 15, फिर 25 और फिर 30। फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 4, 6, 4, 2। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, समेशन fx, f इंटू एक्स का टोटल बाई समेशन f, इजी है, f इंटू एक्स करेंगे 4 और 10 40 इंटू करके,
15 और 6 90, 25 4 100, 30 2 60, ऐड करने से 290 हो गया समेशन एफ एक्स, और टोटल फ्रीक्वेंसी तुम्हारा है 16। तो ये है तुम्हारा 16, 290 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर 18.125। दिस इज योर arithmetic mean. Now there is a point. The point is what is the point? The point is very very important. Missing frequency. मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, गायब किया हुआ है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे लिख रहा है? फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ एरिथमेटिक मीन गिवन है कि वो तुम्हारा गिवन माने क्वेश्चन में दे दिए, वो है 5.1। अब वैल्यूज देखो, x माने वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या क्या x है? 2 है, 5 है, 10 है। दीज आर द वेरिएबल्स वैल्यू। उसका फ्रीक्वेंसी 30, 50, क्वेश्चन मार्क, और मीन दिया हुआ है 5.1। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस फ्रीक्वेंसी। तो इसको कुछ ले लो, मान लो ये ले लेते, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी f भी लिख सकते हो। तो fx 60, fx 250, fx 10a, माइंड इट 10 इंटू, ये तो नहीं मालूम, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे टोटल 80, लेकिन प्लस a होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये 310 प्लस 10a। So missing frequency is a very common type of question in statistics, how to find the missing data, फिगर गायब करती है। तो इसका वैल्यू मीन के लिए हम लोग निकालेंगे कि समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ 310 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 80 प्लस a। तुम्हारे पास दो रास्ता रहेगा। वन होगा कि तुम अपना ऑप्शन पुट करके निकाल लो। ऑप्शन माने 4 ऑप्शन तो रहेगा, तो ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन से 5.1 आएगा। नहीं तो ऐसे मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। ये एफ एक्स का टोटल और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, एंड उसका आंसर 5.1 ये गिवन है। तो हम लोग ऑप्शन पुट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन से 5.1 आएगा। ये एक टेक्निक है, नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं। 310 प्लस 10a इज इक्वल टू, इसको ऊपर उठा दो, इधर उठा दो ऊपर में, माने 5.1 के साथ 80 प्लस a ऐड कर दो। ये थोड़ा टाइम लगता है, ऑप्शन पुट करके भी टाइम लगेगा लेकिन कम लगेगा, कैलकुलेटर है ना। तो ये 310 प्लस 10a, ये इसके बाद सॉल्व हो रहा है। ये 10a 310 के साथ 10a प्लस ये मल्टीप्लाई करके 408 प्लस 5.1a, 5.1a को इधर ले आओ, 310 को उधर ले जाओ, मतलब 10a माइनस 5.1a, a निकालना है। 408 से 310 लेस करेंगे। तो ये कैसे किए? 10a माइनस 5.1a, तो ये हो गया 4.9a, और इधर है 98। तो हमको a निकालना है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 98 बाई 4.9, तो ये 20 है। तो कैसे किए मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन? इट्स ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स। इन अरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी गायब कर दिए और उसका मीन दे दिए। माने ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में देखते हैं कि वैल्यू दे दिए 2, 5, 10, और उसका फ्रीक्वेंसी है 30, 50 और नहीं मालूम। मीन का वैल्यू है 5.1, तो वो मिसिंग डेटा जो है फ्रीक्वेंसी का, उसका क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व करके निकाल दिए कि वो 20 है। नाउ कमिंग टू, अगर ये डेटा में मिसिंग है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, डेटा मिसिंग कर दिए, मतलब देखो, इफ द अरिथमेटिक मीन is, if arithmetic mean
of 2, 5, 3, p, 8 is, एक p आ गया कहां से? ये p एक गायब किया हुआ वैल्यू के लिए p लिखा हुआ है, is 5, फाइंड p। p क्या है कि ये अरिथमेटिक मीन 5 होगा, तो 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस p प्लस 8 होल बाय 5 वैल्यू है इज इक्वल टू 5। क्यों, क्या बोले? ये इज 5 मतलब एरिथमेटिक मीन इज 5 किसका? 1 2 3 4 5 वैल्यू का। क्या क्या वैल्यू है? 2 है, 5 है, 3 है, p है, 8 है। देयर आर 5 वैल्यूज। those values when you add and divide by number of data 5, you will get the mean as 5. Therefore this is your 10 plus 8, 18 plus p is equal to 25. Now what you need? You need the value of p, that is 25 minus 18 is 7. Therefore what we need, ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते थे, p के जगह 7 पुट करने से ये 5 आएगा। 10 प्लस 15 25 by 5 5 है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मिसिंग डेटा फॉर अरिथमेटिक मीन। इन द केस ऑफ अरिथमेटिक मीन वन मोर पॉइंट, क्लास इंटरवल तो रह सकता है, क्लास इंटरवल या ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अरिथमेटिक मीन निकालना है क्लास के लिए 10 से 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, नो 30 to 40 तक ही रखते हैं, और भी होगा, हम ये यहां तक करके समझा देंगे तो हो जाएगा। 2 5 3। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। बोले कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, बस फाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? यहाँ तो हम लोग के पास x नहीं है, वी डोंट हैव x। x माने कैसे x निकलेगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू माने 15, 25, 35। कहां से आया ये? 10 और 20 के बीच में है 15, 20 और 30 के बीच में है 25, 30 और 40 के बीच में है 35। तो अब हो गया एफ एक्स 30, 2 इंटू 15, 125, 5 इंटू 25, 3 इंटू 35, 105। टोटल वैल्यू is coming to be your 240, 260, sorry, 260, and this total frequency is 10. Therefore arithmetic mean x bar will be 260 by 10, that is 26. So we have mean median mode का मीन कंप्लीट इस डिस्कशन से, क्योंकि हम लोग के पास मीन है, मीन इज अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। बट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के अंदर द बेस्ट एवरेज इज अरिथमेटिक मीन, but the other two averages are specially applied for two cases. One is obviously for average of percentage, the other one is average of rate per unit, that is arithmetic mean और harmonic mean का questions deal करने के लिए। Now come to other two measurements, median and mode, because the central tendency सभी को हम पूछते तो बोलते ये तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है और हम लोग आराम से ये सब्जेक्ट को आराम से कर सकते हैं, स्टैट्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बट स्टैट्स के अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कॉन्सेप्ट। चलो मोड देखते हैं, मोड के अंदर क्या प्रॉब्लम। फाइंड मोड। मोड माने मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू। मोस्ट ऑकरेंस जिस वैल्यू का है, मोस्ट ऑकरेंस जिसका ऑकरेंस सबसे ज्यादा है, द वैल्यू हुज ऑकरेंस इज मैक्सिमम। तो जिस वैल्यू का ऑकरेंस सबसे ज्यादा है वो मोड है। तो बोला फाइंड मोड ऑफ, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा वॉच करो। 20, 25, 22, 25, 32, 18, 20, 25, 22, 30, 22।
तो अब क्या देख रहे हैं, देखो इसमें मोड क्या है। 25 एक बार आया, 25 दो बार आया, 25 तीन बार आया, 22 एक बार आया, 22 दो बार आया, 22 तीन बार आया। तो 25 22 दोनों ही मोड है। ऐसे हो सकता है? यस, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर द वर्ड बाइमोडल, माने टू मोड्स। टू मोड्स, वी हैव दिस situation very much possible in mode, that is more than one mode can be found, more than one mode। मोड का वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है, बट मीन के लिए ओनली वन मीन इज पॉसिबल। वी कैनॉट से दैट देयर इज मोर देन वन मीन। सो मीन मीडियन मोड में दोनों मोड या तीनों मोड हो सकता है। True. Mode has a difficulty in this sense that mode may not be always uniquely found. Uniquely माने एक वैल्यू होगा, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज फाइंड मोड बोला ऑफ 12, 42, 18, 52, 80, 28। What is the mode? No mode, क्योंकि इसमें सब वैल्यू का ऑकरेंस सेम है। नो मोड, मोड नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड मोड। देयरफॉर द बेस्ट मेजरमेंट के अंदर मोड को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज मोड हैज टू लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन, मोड अनडिफाइंड हो सकता है, may not be uniquely defined, माने mode may be undefined or undefined माने not possible or not unique माने एक वैल्यू से ज्यादा मोड है। तो ये मोड का एक लिमिटेशन है। नाउ कमिंग टू हाउ वी फाइंड मोड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। अदरवाइज तो हो जाएगा, ऐसे तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मोड निकल जाएगा। माने जैसे बोले कि वैल्यू दे दिए और फ्रीक्वेंसी दे दिए, वैल्यू है 4, 8, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी 7, 9, 6, 2। तो मोड कौन है? 9 इज मैक्सिमम, तो उसका वैल्यू है 15। तो मोडल वैल्यू, रिमेंबर द वर्ड मोडल वैल्यू, माने मोड जो है वो है 15, नॉट 9। फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है उस वैल्यू का वैल्यू होगा, माने उसका वैल्यू होगा मोड। ये तो सिंपल है क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, माने अनग्रुप्ड डेटा है। बट ग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग कैसे मोड निकालेंगे? तो फॉर ग्रुप डेटा व्हाट वी डू, फॉर ग्रुप्ड डेटा माने फॉर ग्रुप्ड मीन्स क्लास इंटरवल गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मेन आइडिया टू फाइंड आउट मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के अंदर है क्लास इंटरवल, तो हम लोग we find mode using histogram। we find mode तुम बोलोगे सर हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। yes, but main idea we find mode using histogram। this is a very important diagram in statistics frequency distribution का। और एक नाम याद रखो, कभी कभी पूछ लेते, एरिया डायग्राम। So what is area diagram? It is nothing but histogram। Histogram has another name called area diagram। How do we measure? ऐसे तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, माने हम लोग के पास है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल है जैसे हिस्टोग्राम होगा क्लास बाउंड्री जोड़ जोड़ के फ्रीक्वेंसी से, ऐसे ऐसे करके होता है। हमें इसे नहीं दिखा रहे कि ये इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द आइडिया। सबसे जो हाईएस्ट है उसका डायगोनल ये है, उसका ये डायगोनल है, तो ये जो कट कर रहा है ये है तुम्हारा मोड। सो हाउ यू फाइंड मोड? हिस्टोग्राम का सबसे टॉलेस्ट रेक्टेंगल से डायगोनल जोड़ के
क्रॉसिंग जो है, इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है उसका परपेंडिकुलर will give you the mode. But this is a diagrammatic measurement. We don't solve diagrammatically because we are MCQ solve करेंगे तो फॉर्मूला आएगा. यस, फॉर्मूला मेनली ऐसे है. मेनली जो पॉपुलर फॉर्मूला है वो है L प्लस, L इज लोअर बाउंड्री, आई विल एक्सप्लेन. L प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ये पूरा करके इंटू आई. दिस इज आई, ये माइनस है. बट एक पॉइंट है, आई वांट टू डिस्कस वन स्मॉल पॉइंट. व्हाट इज दिस? इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? एल माने लोअर बाउंड्री ऑफ द मोडल क्लास. मोडल क्लास माने जिस क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. मोडल क्लास मीन्स द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. F0 मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो. F1 इज प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, उसका पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी. एंड F2 मीन्स नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, सब्सिक्वेंट क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है वो है F2. देन I इज कॉमन क्लास लेंथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Common class length. What is very very important? The length of the class, all classes must be same. तो फॉर्मूला क्या बन गया हम दिखा देंगे, इसमें अभी दिखाएंगे सॉल्व करके. L प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई. L माने लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, F0 माने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, F1 माने उसका प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 माने नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, I माने कॉमन क्लास लेंथ. मेनी क्वेश्चंस विल कम, बट वन सजेशन. व्हाट सजेशन? कि इस फॉर्मूला के बदले इंस्टीट्यूट का जो मैथ है, इट्स वेरी नाइस फॉर्मूला दे हैव गिवन इंस्टेड ऑफ दिस. आई एम नॉट टेलिंग दैट वी शुड फॉलो दैट फॉर्मूला, बट आई एम टेलिंग यू वी शुड नो द अदर फॉर्मूला. L प्लस D1 बाई D1 प्लस D2 into I. L plus D1 by D1 plus D2 into I. D1 is maximum frequency. Actually same formula है, but ये करने में हमको आराम लगता है. माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी. प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास है जो उसका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. F2 is, sorry, D2 is maximum frequency minus next class frequency. अच्छा, अब बाकी L माने लोअर बाउंड्री, I माने कॉमन क्लास लेंथ. तो देखो हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं. ये फॉर्मूला मेरा क्यों पसंद है, वाई आई लाइक दिस फॉर्मूला. चलो एक प्रॉब्लम करके एक्सप्लेन करते हैं. ये बहुत बार आता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फाइंड मोड. आजकल का पेपर में ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा. आजकल का पेपर में स्टैटिस्टिक्स में बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन का डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे. बेसिकली मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. ये दो चैप्टर से कम 12-13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. 12 से ज्यादा, 12-14 क्वेश्चन आ रहा है इसमें से. तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इस चैप्टर में करना चाहिए क्लास. लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट्स का एटीट्यूड दूसरा चैप्टर में, जो चैप्टर नहीं बनता है उसमें ज्यादा दिमाग देते. क्यों? हम बार बार बोलते हैं जो तुम लोग करते हो वो को स्कोरिंग होना चाहिए. स्कोरिंग है ये चैप्टर. 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30. तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं. तो ये हम करके करेंगे क्या? हम बोलते जो तुम जानते हो उसको ही बार बार करो ना. एग्जाम में कौन बोला कि जो नहीं जानते हो उसको करके आओ? जो तुम जानते हो उसको और अच्छे से जानो. ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जो तुम नहीं जानते हो. कैसे दिखा रहे हैं हम. बहुत सारा है जो तुम लोग नहीं जानते हो. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा है ये हो गया मोड का क्लास. ये दोनों का डिफरेंस हो गया D1. ये 8 के साथ प्रीवियस का 3
और ये दोनों का डिफरेंस हो गया D2 माने 2। अब आंसर आ जाएगा कैसे? I माने क्लास का लेंथ 5 है सबका, अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? आ रहे हम उसमें जाएंगे। सेम नहीं है, सबका अलग अलग लेंथ है, तो क्या करेंगे? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। पहले इसको तो सॉल्व करते। मोड का फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला है L प्लस D1 बाई D1 प्लस D2 इंटू आई। L माने इसका लोअर बाउंड्री, बाउंड्री माने 20, D1 माने 3, D2 माने 2, तो 3 प्लस 2 इंटू आई, आई माने 5, तो आंसर हो गया तुम्हारा 23। ठीक ही है। तो F0 F1 करके करेंगे तो क्या रॉन्ग होगा? नो नो, वो भी ठीक ही है, सेम आंसर आएगा 23। हम ऐसे यहाँ देख के ही ऐसे करते थे। तो ये मोड आ गया। अब एक सवाल रह गया कि सर देखिए, अगर दोनों 8 हो जाता तो क्या करते? ये भी 8 हो गया, नहीं कर पाएंगे, मोड फेल हो जाएगा। दोनों 8 है तो कैसे करेंगे? नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन है कि मोड कैनॉट बी फाउंड। यस, ऐसा सिचुएशन है कि मोड कैनॉट बी फाउंड। तो मोड कभी कभी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो तब हम लोग को कुछ और सोचना होगा, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोड समटाइम कैनॉट बी फाउंड। मोड कैनॉट बी फाउंड if there is a tie in the maximum frequency, or there is a tie माने same number, tie in the maximum frequency, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में टाई हो गया, और क्लासेज आर नॉट इक्वल। क्लासेज आर नॉट इक्वल, क्लास जो है अलग अलग लेंथ है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लास बाउंड्री से करते ही याद रखना, लेकिन क्लासेस इक्वल होना चाहिए, सब क्लास का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो मोड कैनॉट बी फाउंड। तो मोड कैनॉट बी फाउंड इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 केसेस। 2 सिचुएशंस के लिए मोड को निकालना पॉसिबल नहीं है। पहला सिचुएशन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार 3 बार आ गया, सेम वैल्यू, जैसे पिछला क्वेश्चन में 8 था फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू, वो 2 बार आ गया, या क्लास का लेंथ अलग है, तो मोड होगा नहीं। तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोड कैन नॉट बी फाउंड, दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, दे सकते हैं। आजकल क्वेश्चन का जो स्टाइल है बहुत बेसिक आइडिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, जब मोड ऐसे दे रहा है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, और फ्रीक्वेंसी दे दिए 2, 5, 9, 12 और 3, तो मोड कैसे निकलेगा? तो ये है तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब देख रहे ये है, तो इसको पहले गौर से देखो। ये हो गया D1, D1 माने 12 और 9 का डिफरेंस 3, और D2, D2 माने 12 और 3 का डिफरेंस 6, और ये लोअर बाउंड्री क्या होगा? L30 नहीं होगा, 29.5। क्यों? ये तो 30 है लोअर बाउंड्री। नो, 29.5 टू 39.5, तो लेंथ क्या है? सबका लेंथ सेम है, 29.5 और 39.5 का डिफरेंस 10 है सबका। देखो 10 है, 10 है, कैसे 10 है? ये तो 9 दिख रहा है। ये -0.5 टू 9.5, ये 0 नहीं है, ये होना चाहिए -0.5, ये होगा ना चाहिए 9.5। नेक्स्ट क्लास में भी सेम। तो अब हम लोग सॉल्व कर देंगे मोड का वैल्यू, जो L प्लस 29.5 प्लस D1 माने 3 बाई D1 प्लस D2 into I माने 10। So you will be getting your answer as 29.5 प्लस 10 बाई 3 हो जाएगा, वो 30 बाई 9 आ रहा है, तो ये 29.5 प्लस 3.33, therefore it is 32.83 is the mode। ऐसे मोड निकालने का रास्ता मिल गया। अब देखो मीन मीडियन मोड का हम लोग मोड दिखे, आज मोर और लेस डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि मोड कैसे दिखते। ये मीन मीडियन मोड का मोड इज गुड मेजरमेंट बट नॉट द बेस्ट। बेस्ट कौन है? बेस्ट तो मीन है, एरिथमेटिक मीन। लेकिन और एक मेजरमेंट है जो है पोजिशनल एवरेज।
व्हाट इज पोजिशनल एवरेज? एक बार आया था, व्हाट डू यू मीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज? ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दे रहे आजकल। क्वेश्चन तो देंगे, दे विल गिव क्वेश्चन बट नॉट ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पोजिशनल एवरेज, फाइंड पोजिशनल एवरेज माने पोजिशनल एवरेज वो कौन है? पोजिशनल एवरेज का और एक नाम है, पोजिशनल एवरेज का नाम और एक है पार्टीशन। पार्टीशन और एक नाम मीडियन। सो मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, पार्टीशन, मीडियन। सेम और भी नाम है, मीडियन का बहुत सारा नाम है। फिलहाल मीडियन को पोजिशनल एवरेज या पार्टीशन या मीडियन एक ही तरीके से। तो बेसिकली हम लोग एक असेंडिंग डेटा सजाएंगे, माने लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू। नॉर्मली असेंडिंग डेटा के बदले डिसेंडिंग डेटा भी हो सकता है, लोअर टू हायर। फिर मीडियन होगा n+1/2th वैल्यू। तो ये तो हम उस दिन बताए थे कि कैसे करते, वो उस दिन प्रॉब्लम भी दिए थे तुम लोग को, तुम लोग सॉल्व तो कर लिए। जैसे हम दिए थे क्वेश्चन नंबर 10 या 11, उसको सजा के देखना था। और आई होप दैट यू हैव फाउंड द वैल्यूज मिडिल में। आई हैव टू डिस्कस टू थिंग्स टुडे। फर्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी रहने से कैसे मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी माने जब फ्रीक्वेंसी है तो आप कैसे करेंगे। तो देयर आर टू केसेस, वन इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है, सेकेंड इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जिसमें क्लास इंटरवल है। तो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन टुडे फर्स्ट, बिकॉज आई हैव टू से सम मोर थिंग्स ऑफ अदर डिस्कशंस। ग्रुप के बारे में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, आज हम अनग्रुप के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। बहुत इजी बात है, n+1/2th वैल्यू। तो कैसे निकलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF माने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माने ऊपर से जोड़ते रहो। तो कैसे कैलकुलेट होगा? हाउ टू कैलकुलेट ये मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डेटा। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्टी अराइज हो जाता है। डिफिकल्टीज अराइज कैसे होगा? देखो, डिफिकल्टीज अराइज होता है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टीज नहीं है, डिफिकल्टीज है। तो कैसे डिफिकल्टीज है देखो, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा अब बोले कि वैल्यूज दे दिए, x दे दिए और f दे दिए, 4, 9, 12, 15, 20 और इधर फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 7, 4, 3। तो फर्स्ट थिंग यू डू, क्यूमुलेट करो, ऊपर से जोड़ते रहो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माने नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टू ऐड द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टॉप। ऊपर से जोड़ते रहो, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी है, फिर 2 + 5 7, फिर 2 + 5 + 7 14, फिर 4 ऐड करो, फिर 21। ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। मीडियन n+1/2 माने 21 + 1/2, that is 11th वैल्यू। 11th वैल्यू माने 7th वैल्यू से ज्यादा 14th वैल्यू में आएगा। वंस सेकेंड वैल्यू 4 है, 7th वैल्यू 9 है, 14th वैल्यू तो है 12, माने सेकेंड वैल्यू है 4। ये कैसे 4? अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 2 माने क्या है? माने पहला दो वैल्यू 4 दिख रहा है, 4,4 दो वैल्यू है 4। फिर उसके बाद 7th वैल्यू 9 है, फिर 14th वैल्यू है 12, लेकिन मेरे को तो 11th वैल्यू चाहिए। उस 7th वैल्यू से ज्यादा, 12th वैल्यू से कम, तो 11th वैल्यू होगा
11 वैल्यू इसमें आएगा, तो 14 के अंदर 12 है। और एक बार आंसर 12 है, 11 नहीं है। 11 नहीं है तो 11 क्या है? 11 है वो पोजिशनल एवरेज का पोजिशनल है, 11 नंबर पोजीशन में जो है। तो कैसे ये किए? बहुत सिंपल टास्क है। पहले वैल्यूज को लिखो। 4 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 वैल्यू है। 9 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 12 का फ्रीक्वेंसी 7 है, 15 का फ्रीक्वेंसी 4 है। तो ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्यूमुलेट कर लेंगे, माने ऊपर से जोड़ते रहेंगे। तो 21 आ गया टोटल। तो 21 का प्लस 1, 21 प्लस 1/2 इज 11। 11वां वैल्यू कौन है? तो कैसे निकलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालना है। 2, 7, 14। तो 14 के अंदर 11 है, तो 14 के अंदर 11 है, तो ये 14 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है? 12। तो ये होगा। चलो और एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करके रखते हैं, क्योंकि उन लोग आजकल क्वेश्चंस बहुत वैरायटी पूछते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, एक दे दिए, एफ दे दिए, 120, 135, 145, 152, 160, 175। फ्रीक्वेंसी दे दिए 3, 9, 12, 15, 7, फिर 5। डन। अब कैसे करोगे? पहले क्यूमुलेट करो। 3 पहले, फिर 3 प्लस 9 12, फिर 24, फिर 39, फिर 46, फिर 51। तो 51 हो गया तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी 51 प्लस 1/2 क्या है? 26 वैल्यू है। तो थर्ड वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, उससे ज्यादा है 26। फिर 12 है, उससे ज्यादा है 26। फिर 24 है, उससे भी ज्यादा है 26। हमको 26 वैल्यू चाहिए। तो वो 26 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 से ज्यादा है, लेकिन 39 के अंदर है। क्यों? क्योंकि 24 से ज्यादा जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो वो 26वां वैल्यू कौन सा जगह है? 39 के अंदर है। 39 के अंदर क्या है? 26वां वैल्यू है, क्योंकि 24 के बाद 25, फिर 26, ऐसे 39 के अंदर है, तो उसका वैल्यू क्या है? 152। तो आंसर इज 152। तो व्हाट यूज द टास्क? मीडियन का काम क्या करना है? n प्लस 1/2 निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो लाई कर रहा है। 24 से ज्यादा, 39 से कम है 26 का वैल्यू, तो वो 39 का जो वैल्यू है वो 152 है। तो मीडियन होगा 152। नॉट टफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट आइडेंटिफाइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड योर n प्लस 1/2। दैट वे वी कैन फाइंड। कुछ डिफिकल्टी है अनग्रुप्ड के बारे में हम बता रहे हैं। कुछ डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी है मतलब डिफिकल्टी है। देखो एक कुछ डिफिकल्टी है। 10, 12, फाइंड मीडियन, थोड़ा सा डिफिकल्टी है। फाइंड मीडियन, सेम। फाइंड मीडियन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग सब क्वेश्चन को एकदम क्लियर नॉलेज में रखो। ये दिया हुआ है, अच्छा ये है 5, ये है 8, ये है तुम्हारा 10, ये है तुम्हारा 11, ये नहीं 11 नहीं, सॉरी 9, ये है 7, और ये है 4। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते 5, 13, 23, 32, 39, 43। तो हमको 40, एक मिनट, इसको थोड़ा ये थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा, एक मिनट। ये करेंगे, थोड़ा सा चेंज करने दो। ये हमको चाहिए, ये हमको थोड़ा सा चेंज करना है। आई वांट टू चेंज। चेंज क्यों करेंगे? एक चीज दिखाएंगे।
मान लो 8 है, इधर नहीं इधर, मान लो ये 8 है तो 47, सॉरी 6 7, फिर से 7, कोई इशू नहीं है, 46 है तो ये भी तो 7 है, ये भी 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन में फ्रीक्वेंसी सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है, मोड में सेम होने से, और ये भी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ठीक है। 46 आया तो दोनों 7 है, तो क्या होगा, कैसे किए, 5 प्लस 8 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 7 39, 39 प्लस 7 46, तो ये 46 आया एम। अच्छा, तो हमको क्या करना होगा, n प्लस 1/2th वैल्यू पोजीशन के हिसाब से देखना है, तो 46 प्लस 1/2 23.5 वैल्यू, तो कैसे करेंगे, तो कर दो। 23.5 तो 32 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, ऐसे नहीं होगा, क्यों, 23.5 तो 23 क्रॉस करके 32 में चला गया, नहीं वैसे नहीं होगा। 23.5 वैल्यू कैसे निकलेगा, 23rd वैल्यू, गौर से देखो, ये थोड़ा समझो, ये तो इजी है, 5 से ज्यादा 23 13 से ज्यादा है 23.5, 23 से ज्यादा है तो 32 में जाएगा, नो, थोड़ा सा समझो ये कैसे करना है। 0.5 है ना, 0.5 आने से हमको देखना है 23rd वैल्यू प्लस 24th वैल्यू, दो वैल्यू है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। ये बहुत केयरफुली नोट करो, 23rd वैल्यू है 18, ये 23rd वैल्यू है 18, और 24th वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू माने 25, तो ये 18 है 23rd वैल्यू, बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 है 18, और नेक्स्ट वैल्यू है 24, तो वो 25, क्योंकि 18 के बाद 25 है डिवाइडेड बाई 2। और एक बार हम बताएंगे, ये हो गया 43/2 21.5 इज योर मीडियन। और एक बार 21.5 इज योर मीडियन, क्यों ऐसे किए, क्वेश्चन को फिर से देखो। हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई मीडियन मोड तो ये है, हो जाएगा, ऐसे इजी है, तुम लोग को ये सब आता है, लेकिन एक बार समझो कैसे। पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, फिर n+1/2, n+1/2 माने n+1/2 माने 46 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी प्लस 1, 47/2 किए तो वो आ गया तुम्हारा 23.5। 23.5 मीन्स व्हाट, 23 24 दोनों के बीच में, तो 23rd वैल्यू और 24th वैल्यू निकाल के देख के जोड़ो, प्लस करके 2 से डिवाइड करो, तो 23rd वैल्यू कौन है, 23rd क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है, और 24th उसके बाद तो वो 25 है, तो हम लोग मीडियन करेंगे 18 और नेक्स्ट वैल्यू है 25, जोड़ के 43/2 इज 21.5। ये बहुत अनयूजुअल, बहुत ही रेयर, माने एकदम रेयरेस्ट सिचुएशन में ऐसा देखे, कभी देखे नहीं, सी फाउंडेशन में कभी नहीं आया, लेकिन बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, बिकॉज ये फाउंडेशन का एग्जाम ऐसा नहीं है कि भयंकर टफ देते, बहुत टफ नहीं देते, लेकिन कुछ आइडियाज जरूर याद रखना होगा। जैसे 2 आइडिया तुम लोग को बता देते, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए 2-3 आइडिया हम एक बार बताना चाहते। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो, ये फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + अप टू n जब भी आएगा, ये फॉर्मूला खाली मीन मीडियन मोड नहीं, अलजेब्रा में एपीजीपी में भी आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ये स्टैटिस्टिक्स में भी है। इसका टोटल याद रखो, फॉर्मूला है n × n + 1/2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखाएंगे, ये 3 फॉर्मूला बाद में जब हम एपीजीपी करेंगे तब भी करेंगे। तो अब क्यों लिखा रहे, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी पूछते हैं। कौन सा, ये एएम जीएम एचएम के अंदर पूछते हैं। मीडियन एंड मोड में उतना झमेला नहीं, लेकिन एएम जीएम एचएम के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। नंबर 2, ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 ये सब नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज नेचुरली आ रहा है 1 से काउंट करके। इसके बाद स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर,
sum of square of natural number. 1 square, 2 square, 3 square, n square is n into n plus 1, 2n plus 1 by 6. तुम बोलोगे सर ये सब हम लोग क्यों याद रखेंगे, जरूरत होगा, क्यों जरूरत होगा, दिखा, आई एम शोइंग यू व्हाई वी नीड इट. ये तीन फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये सब फॉर्मूला लिख के याद करके रख दो. क्यों ऐसे, क्या इसका एप्लीकेशन है, दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे. ये तो मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया. आई नो दैट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, बट ये स्टैटिस्टिक्स में पूछते हैं और बहुत रेगुलरली पूछते हैं. कैसे, चलो हम दिखा रहे हैं. आई एम शोइंग यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्वेश्चन है, ये तीनों फॉर्मूला फिर से एक बार देख लो, हम फिर से लिखेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n का टोटल है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. माने लास्ट का जो फिगर है वो n है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, याद रखो ये बहुत ही जरूरत है. n इंटू एन प्लस 1 जो था पहले वैसा ही है, इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. 6 कहां से आ रहा है, ये सब फॉर्मूला है, दीज आर अलजेब्रा. अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऑल आर फॉर्मूलाज विच वी नीड टू मेमोराइज. तुम बोलोगे कैसे आया, ये हम लोग को प्रूव नहीं करना है, हम लोग को याद रखना है. तीन फॉर्मूला. चलो एप्लीकेशन कहाँ है, देखो दो एप्लीकेशन तुम लोग को दिखाएंगे, एम और एचएम में, जीएम और एचएम में. एचएम निकालो, एचएम ऑफ 1 हाफ 1/3 डॉट 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 1/20. इसका हार्मोनिक मीन निकालो. फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 हाफ 1/3 अप टू 1/20. ठीक है, तो ये n माने 20 है. क्यों, 1 2 3 4 करके 20 इज द लास्ट का फिगर. ठीक, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, ऊपर में n, नीचे सबका रेसिप्रोकल का टोटल, माने ये उल्टा करके जोड़ना है. ठीक है, ऊपर में होगा 20 और नीचे उल्टा करके लिखेंगे, 1 का रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल, करते करते 1/20 का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करके जोड़ना है, हार्मोनिक माने रेसिप्रोकल. तो ऊपर में 20, नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3. कैसे, ये 1 हो गया, 1 का उल्टा तो 1 है, हाफ का रेसिप्रोकल 2 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है और 1/20 का रेसिप्रोकल 20 है. तो सर हम जोड़ देंगे, हो जाएगा. यस, हो तो जाएगा, लेकिन 1 2 3 करके 20 तक करने के लिए टाइम लगेगा. तुम्हारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2. ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, अभी लिखे थे ना. अच्छा, ये फॉर्मूला अगर नहीं करते तो क्या नहीं कर पाएंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन 20 तक जोड़ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. अगर 20 के बदले 30 रहेगा और टाइमिंग, 30 के बदले 40 रहेगा और प्रॉब्लम. और अगर एन रहेगा, इस क्वेश्चन में अगर एन रहेगा जो स्टडी मटेरियल में है, 20 कट जाएगा, 2 आंसर इज 2/21. क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ऐसा है, कैसा, ये 2/21 तो हम बनाए, 20 तक दिए. क्वेश्चन क्या था, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 1 हाफ 1/3 करके 1/20. मटेरियल में तुम लोग का जो बुक है वो बुक हम कराते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में कराते हैं, स्टडी मटेरियल हम बाद में कराते हैं. लेकिन हम करते करते बोल देते कि ये है, ये एन है, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये एन है, ऐसे एन दिया हुआ है, तो ये ऊपर में एन ही रहेगा, नीचे 1 2 3 अप टू एन तक जोड़ेंगे, उल्टा हो गया ना. तो ये तुमको तभी कर पाओगे जब तुम वो तीन फॉर्मूला का नॉलेज है, ऊपर में एन, नीचे एन इंटू एन प्लस 1/2. तो ये तो एन कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा. ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है और ये आया भी है सीए फाउंडेशन में. सिर्फ सीए फाउंडेशन में नहीं, ये क्वेश्चन ही टाइप ही अलग है. ये हार्मोनिक मीन का एक बहुत अलग टाइप का है. तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कैजुअली लेना है. इट्स नॉट दैट कैजुअल
सब्जेक्ट चैप्टर, बट यू शुड डू इट वेरी केयरफुली। एक लास्ट प्रॉब्लम बताएंगे ज्योमेट्रिक मीन में, तो हम लोग का आइडिया एम जी एम एच एम मीन मीडियन मोड खत्म होगा, लेकिन मीडियन का कुछ डिस्कशन बाकी है, वो अगला क्लास में मीडियन का कुछ डिस्कशन एंड some more ideas central tendency next day खत्म कर देंगे. So next day I will complete central tendency and I will do dispersion. After that I will enter mathematics में फिर से जाएंगे. मैथमेटिक्स में बहुत सारा टॉपिक है जो करना है, फिर ऑब्वियसली स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कराएंगे. तो पहले ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड, लास्ट क्वेश्चन एक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ के स्क्वायर के क्यूब डॉट 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 के टू द पावर एन. प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्वेश्चन देख के ना हम लोग डर जाते हैं और नहीं होता है, समझ में नहीं आता ये कैसे करेंगे. पहले प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन माने पहले प्रोडक्ट. ज्योमेट्रिक मीन क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट माने इंटू करके ऊपर में 1/n लेते हैं, क्योंकि n डेटा है. ठीक, थोड़ा आराम से देखो. हाँ, इसमें एकदम झमेला नहीं करना है, एकदम आराम से देखो. के स्क्वायर के क्यूब, ऐसे प्रोडक्ट माने इंटू कर रहे हैं के टू दी पावर n और ऊपर में 1/n. ठीक, तो ये k का पावर ऐड हो जाएगा, बिकॉज k टू दी पावर 1, k के ऊपर 1 है, फिर k के ऊपर स्क्वायर है, तो पावर ऐड होगा 1 + 2 + 3 + अप टू n, होल टू दी पावर 1/n. तुम अगर थोड़ी देर पहले जो बताए थे वो याद करोगे तो ये फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, k टू दी पावर n इंटू n + 1/2, और वो बाहर 1/n है. तो स्टैटिस्टिक्स में ये सब क्वेश्चन आया है. एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं. ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो एपीजीपी जैसा लग रहा है कि ऐड होगा, हम बाद में कराएंगे. तो n कट गया, तो आंसर होगा n + 1 k टू दी पावर n + 1/2. तो आज का डिस्कशन में बहुत कुछ बताया हम, मेनी थिंग्स. स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा बताना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ है. फर्स्ट पॉइंट आई सेड ये कि दो वैल्यू मीन कैसे होता है. जो वैल्यू है वो नहीं मालूम, लेकिन आंसर मालूम है, तब ऑपोजिट कर लेना. फिर कॉम्बाइन एरिथमेटिक मीन, कॉम्बाइन हार्मोनिक मीन बताए. फिर हम तुम लोग को मीडियन और मोड के बारे में कुछ डिस्कशन किए. उसके बाद हम जरूर बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन दोनों करवाए, जिसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा, 1 + 2 + 3 जैसे. इस टाइप का दूसरा फॉर्मूला और बाकी दो फॉर्मूला वैसा भी हो सकता है, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है. तो आई एम हैविंग डन दिस वन. ये तो कंप्लीट पता है पूरा, तो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए. ये टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का ऑलमोस्ट हो गया. तो अगला क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट करके हम चले जाएंगे डिस्पर्शन में. तो डिस्पर्शन इज अनदर वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से करना है. और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा थोड़ा कम कराए, वो थियोरी ज़्यादा है, हम कराए बाद में कराएंगे, क्योंकि वो थियोरी अभी तुम लोग को बताएंगे तो भूल जाओगे. तो इस चैप्टर में कुछ थ्योरी अभी है जो हम बताए. दो थ्योरी याद रखो. तो क्या थ्योरी, दो थ्योरी. फर्स्ट, if any value is 0, then geometric mean and harmonic mean cannot be calculated. क्यों, ऐसा क्यों? कोई भी वैल्यू अगर 0 दिया हुआ है तो उसका जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा. माने हार्मोनिक मीन माने उल्टा करते ना, तो अगर 0 है तो 0 का उल्टा तो होगा नहीं. माने अगर बोले कि 0, 1, 2, 3 का जियोमेट्रिक मीन क्या है, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 है ना, आंसर तो ऑलवेज 0 हो जाएगा. हार्मोनिक मीन नहीं होगा, क्योंकि 0 का उल्टा करना है, 0 का उल्टा नहीं होता है. तो ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन है जहां कोई भी वैल्यू 0 है, तो जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं होता है. तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंदर ये सिचुएशन है वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंदर वैल्यू अगर देखोगे, वेरी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट कि ये दोनों यूज करना मुश्किल है. द लास्ट पॉइंट
द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी है एम। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलवेज algebraically calculated is aim। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which measurement of central tendency is the best? Arithmetic mean। Which central tendency cannot be calculated if any value is 0? Geometric mean, harmonic mean। And which central tendency is average? Positional average? Obviously median। So आज हम यहाँ तक बताए, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं, बहुत सारा। हम तुम लोग को स्कैनर से सॉल्व कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है ऐसे हम और कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन खाली करके जाने से स्टैट्स नहीं होगा। 40 में 40 ले आएंगे, स्टैट्स में लाना ही होगा। ये बहुत ही इजी टू स्कोर स्टैटिस्टिक्स। तो चलो आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।